हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस्ड डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के इस लेक्चर सीरीज में। फ्रेंड्स, इस एडवांस्ड डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन में हमको पढ़ना है VHDL लैंग्वेज। VHDL लैंग्वेज के फंडामेंटल्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। नाउ आज के वीडियोज़ में हम देखेंगे कि VHDL का प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। So in this video we are going to learn how to write down the VHDL program for the different basic gates that they are used in the digital circuits. So friends, we are having the different basic gates as AND gate, OR gate, NOT gate, NOR gate, NAND gate, XOR gate and XNOR gate. So these are some of the basic gates that they are used in the digital circuit while forming the big system. Now let us see how to write down the VHDL program for these gates. तो friends, ये सभी के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कॉमन प्रोग्राम दूंगा जिस प्रोग्राम में सिंपली एक जगह अगर आप चेंज करते हो तो आपको सारे गेट्स के प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे एक्सेप्ट द नॉट गेट। तो फ्रेंड्स, लेट अस सी हाउ टू राइट डाउन द VHDL प्रोग्राम फॉर दीज बेसिक गेट्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एंड गेट के लिए प्रोग्राम लिख के बताता हूं, 2 इनपुट एंड गेट। उसके लिए प्रोग्राम किस तरह से लिखना है। एंड अगर आपको OR गेट, XOR गेट, XNOR गेट, NAND गेट, किसी भी गेट के लिए अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो उस केस में आपको कहाँ पे चेंज करना है ये हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉर राइटिंग द VHDL कोड फॉर द AND गेट, राइट। सो हियर आई विल गिव द हेडिंग AND गेट। So we will write down the VHDL code for this AND gate. Now, before writing any VHDL code for any digital circuit or digital system, you have to call the header files. You have to include the header files in the VHDL program. So for that, we have the 2 header files, right? And that header files is nothing but your library IEEE. You have to remember both these lines and use IEEE .std underscore logic underscore 1164 dot all semicolon. So friends, these 2 lines will be there in every program that you will write down for any digital circuit, right? So you have to be very sure, you have to remember these 2 lines. Whatever the program you are writing, VHDL program you are writing, you have to first write down these 2 lines. So we have the IEEE library, and inside that IEEE library for our program we are using the std underscore logic underscore 1164 package. So there are various packages, but all the data types, all the functions that is required for writing the program for the basic gates, they are included in this package. So I will include this package. Now, for writing down the VHDL code for this AND gate, 2 input AND gate, let us first draw the block diagram, right? So for the 2 input AND gate, I will draw one block diagram, simple block diagram. So let us consider this block diagram. Let us consider this is 2 input AND gate. Now for this 2 input AND gate, we are having the 2 inputs, right? I can give any name to these inputs, right? And it is having one output. So let us name these ports, right? So these ports are nothing but the external pins which are used to connect to the outside world. Now user can give any name to these ports. So for the simplicity, I will assign the name of the ports as A, and second port जो है या पिन जो है उसको नाम दे देता हूँ मैं B, और जो आउटपुट पिन है उसको नाम देता हूँ मैं Y. You can give any other name. Now for this AND gate, you must know the output equation.
you know that the output equation for this AND gate is y is equals to a dot b. This expression is called as the logical expression or Boolean expression, and always whenever we are having the dot, this dot represents the AND operation. This represents the AND operation, right? Now let us see how to write down the VHDL code for this block. Now here in this case, for writing down the VHDL code, first of all we have to describe the ports. इसके पोर्ट्स हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, राइट? इसके पोर्ट्स हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड दैट पोर्ट्स आर डिक्लेयर्ड इन द एंटिटी, राइट? तो VHDL में हमारे पास दो पार्ट्स रहते हैं. फर्स्ट वन इज द एंटिटी एंड सेकेंड वन इज द आर्किटेक्चर. Both are the compulsory part of the VHDL program, right? So first of all we have to write down the entity, right? So how to write down the entity? See, now for writing down the entity I will write down the keyword entity. Then you have to give the name to this entity. इस entity को मुझे नाम देना है, तो मुझे एक कॉमन प्रोग्राम बनाना है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं नाम देता हूं कि my_gate. Right? For AND gate you can give the name that is AND_gate or AND gate. Don't simply give the AND आपको नहीं देना है. क्यों? Because it is the reserved word in VHDL and your identifier or the user defined name should never be the reserved word. ध्यान में रखना है. तो रिजर्व वर्ड छोड़ के आप दूसरा कोई भी नाम दे सकते हैं. तो बेसिक है कि एंड गेट अगर है तो आप यहाँ पे एंड गेट नाम दे सकते हो या गेट एंड नाम दे सकते हो एंड सो ऑन. लेकिन मुझे एक कॉमन प्रोग्राम बनाना है, इसलिए मैं इसको दे देता हूं कि my_gate. उसके बाद में कीवर्ड देना है आपको is, right? Then after this you have to declare the ports. So here I will write down the keyword port and inside this round bracket you have to declare all the ports. ठीक है? So if you see here for our design we are having the two input ports. अगर इसके नेचर अगर आप देखते हो, ठीक है, बोथ आर द सिंगल बिट लाइंस. दोनों हमारे पास सिंगल बिट पोर्ट है. इसके ऊपर जाने वाला डेटा है तो 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1, यानी एक ही बिट इसके ऊपर जाएगा. इसके ऊपर जाने वाला डेटा भी आपका डेटा टाइप अगर आप देखते हो तो आइदर 0 या 1 जाने वाला है, यानी इसका डेटा टाइप भी सेम है. और दोनों मेरे पास क्या है, इनपुट है. तो अगर कोई पोर्ट्स हमारे पास सेम टाइप के अगर है, यानी उसका साइज, उसके ऊपर जाने वाला डेटा और उसका मोड, वेदर इट इज इनपुट, आउटपुट या इन आउट, अगर ये मोड अगर आपका सेम है तो इन दैट केस यू हैव टू डिक्लेयर दैट पोर्ट्स इन अ सिंगल लाइन. आप उसको एक ही लाइन में आप डिक्लेयर कर सकते हो. आप उसको अलग अलग लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट इट इज नॉट द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. तो अगर सेम टाइप के पोर्ट्स अगर है तो यू कैन डिक्लेयर दैट पोर्ट्स इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा. सो हाउ टू डिक्लेयर इट? आई विल राइट डाउन हियर A, B. दोनों सेम टाइप के हैं इसलिए कॉमा से सेपरेट कर दिया है. देन उसके बाद देना है आपको कोलन, राइट? कोलन के बाद देना है आपका मोड यानी क्या, वेदर दिस पोर्ट्स आर द इनपुट पोर्ट्स टू योर डिजाइन या आउटपुट पोर्ट्स या बाय डायरेक्शनल अगर है तो उस केस में हम लिख सकते हैं इन आउट, या लास्ट में एक रहता है हमारे पास बफर. ये सारे इसका थियोरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दोनों पोर्ट्स हमारे पास इनपुट है तो इनपुट के लिए इसका मोड लिखना है आपको इन, राइट? एंड आफ्टर राइटिंग द इन यू हैव टू स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप. इस पोर्ट के ऊपर जो डेटा जाने वाला है, डेटा इनपुट करने वाले हैं, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, राइट? तो हमने देखा हुआ एक तो 0 0 जाएगा, 0 1 जाएगा, 1 0 जाएगा या 1 1 जाएगा, 0 या 1 जाएगा. इसका मतलब दीज आर नथिंग बट योर बिट डेटा टाइप, बाइनरी डिजिट बिट. तो हियर आई कैन स्पेसिफाई द बिट, राइट? इंस्टेड ऑफ बिट you can also write down the std_logic. You can also write down the std_logic. In std_logic, along with the 0 1, we are having again 5 different values, and there are total 7 values in std_logic. तो आप बिट के जगह std_logic भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. तो इनपुट पोर्ट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है. सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में आपको डिक्लेयर कर देना है आउटपुट पोर्ट, क्योंकि आउटपुट इट इज डिफरेंट, दो इट इज अ सिंगल बिट लाइन बट इट इज द आउटपुट. सो इसका टाइप अलग है,
ए और बी से इसका टाइप अलग है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम अलग से डिक्लेयर करेंगे। तो वाई ये आउटपुट लाइन है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम आउट। और अगर आप एंड गेट का आउटपुट अगर आप देखते हो तो आइदर 0 या 1 में से ही आएगा। 0 0 अगर देते हैं तो 0 आएगा, 0 1 अगर देते हैं तो भी 0 आएगा, 1 0 देते हैं तो भी 0 आएगा, और 1 1 देते हैं तो आपका आउटपुट मिलेगा 1। इसका मतलब आउटपुट इज ऑल्सो आइदर 0 और 1। सो इट कम्स अंडर अगेन द बिट डेटा टाइप, राइट। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिख दूंगा बिट। तो क्या किया मैंने, पोर्ट्स के नाम, देन कोलन से सेपरेट करना है, देन उसका मोड लिखना है वेदर इट इज इनपुट और आउटपुट, और उसके बाद में उसका डेटा टाइप लिखना है। सभी पोर्ट्स डिक्लेयर होने के बाद सबसे लास्ट पोर्ट जब हम डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट मुझे कंप्लीट कर देना है और उसके बाद में आपको सेमीकोलन देना है, राइट। तो ये पोर्ट डिक्लेरेशन हो गया। एंटिटी को आपको एंड करना पड़ेगा, राइट। तो एंड एंटिटी का नाम है आपका my_get। तो एंड लिखना है और एंड के बाद उस एंटिटी का नाम देना है। दिस नेम इज ऑप्शनल। ये नाम अगर myget एंड करते समय myget नाम अगर नहीं भी दिया तो भी आपका कंपाइलर एरर नहीं देगा। सो दिस इज नथिंग बट द डिक्लेरेशन ऑफ द एंटिटी। नाउ अलॉन्ग विद दिस एंटिटी यू हैव टू राइट डाउन द आर्किटेक्चर। नाउ आर्किटेक्चर में एक्चुअली क्या करते हैं, आर्किटेक्चर में वी स्पेसिफाई द बिहेवियर, द फंक्शनिंग और ऑपरेशन ऑफ दैट गेट, राइट। तो यहां पे हमने सिर्फ पोर्ट डिक्लेयर किया एंटिटी में, आर्किटेक्चर में क्या करना है आपको इसका ऑपरेशन स्पेसिफाई करना है। तो आर्किटेक्चर में क्या लिखेंगे हम, हियर वी विल राइट डाउन द कीवर्ड आर्किटेक्चर, देन यू हैव टू गिव द नेम टू दिस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को नाम देना है। आर्किटेक्चर को नाम देता हूं सपोज मैं डेटा फ्लो, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कौन सा स्टाइल से अगर मैं लिखता हूं उसके हिसाब से इट इज बेटर। डेटा फ्लो, बिहेवियरल या स्ट्रक्चरल, ये तीन में से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम दिखेंगे। और ये क्या इंडिकेट करता है कि मैंने आर्किटेक्चर कौन से स्टाइल से लिखा हुआ है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन लेवल फॉर दैट आर्किटेक्चर, ये आपका इस नाम से पता चल जाएगा। तो आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का नाम ऑफ इज द कीवर्ड। अभी ये जो आर्किटेक्चर लिख रहा हूं, ये आर्किटेक्चर कौन से एंटिटी के लिए लिख रहा हूं, उस एंटिटी का नाम यहां पे आना चाहिए। मैं किसके लिए लिख रहा हूं, इस एंटिटी के लिए आर्किटेक्चर लिख रहा हूं, तो यहां पे नाम क्या आएगा मेरे पास, my_get, और लास्ट में आपका आएगा इज। तो आर्किटेक्चर कीवर्ड, उसके बाद में आर्किटेक्चर का नाम ऑफ, उसके बाद में कौन से एंटिटी के लिए हम लिख रहे हैं उसका नाम और इज। उसके बाद में आर्किटेक्चर में आपके दो पार्ट्स होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स इन द आर्किटेक्चर, वन इज द डिक्लेरेशन पार्ट एंड अनदर वन इज द बॉडी। इन डिक्लेरेशन अगर आपके प्रोग्राम में या आर्किटेक्चर लिखते समय अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सिग्नल, एक्स्ट्रा वेरिएबल या एक्स्ट्रा फंक्शंस, पैकेज, मॉड्यूल, अगर किसी की भी जरूरत अगर पड़ती है तो आपको डिक्लेयर करना है आर्किटेक्चर कीवर्ड के बाद में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे आउटपुट इक्वेशन अगर देखते हो, सिंपली इट इज y इज इक्वल्स टू a डॉट बी। ऑलरेडी हमने a और b दोनों को डिक्लेयर कर दिया है, y को भी ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट फॉर द बॉडी ऑफ द आर्किटेक्चर, एंड बॉडी ऑफ द आर्किटेक्चर बिगिंस विथ द कीवर्ड बिगिन। आर्किटेक्चर का बॉडी बिगिन कीवर्ड से आपको चालू करना है, राइट। अभी बिगिन के बाद एक्चुअल इक्वेशन जो है आपको इंप्लीमेंट कर देना है। अभी इक्वेशन क्या है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी, और डॉट के लिए बोला है मैंने कि एंडिंग ऑपरेशन है। तो इसको लिखते कैसे VHDL में देखिए, तो y इज असाइंड विथ, इक्वल टू नहीं लिखना है आप लोगों को, इट इज y इज असाइंड विथ लेस देन इक्वल टू साइन। सो दिस लेस देन और इक्वल टू साइन इट इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद में हमारे पास a, राइट, डॉट यानी कि हमारे पास एंडिंग ऑपरेशन है, तो एंडिंग ऑपरेशन के लिए मेरे पास कीवर्ड है एंड। एंडिंग ऑपरेशन के लिए एंड एक तो स्मॉल केस में लिख सकते हो या कैपिटल केस में भी लिख सकते हो, और दूसरा के पोर्ट क्या है मेरे पास बी। तो मैं इस तरह के सेंटेंस को लिखूंगा y इज असाइंड विथ a एंड b, राइट। और सेंटेंस होने के बाद इस आर्किटेक्चर को आपको एंड कर देना है, तो एंड, और आर्किटेक्चर का नाम देना है, और आर्किटेक्चर का नाम क्या है मेरे पास, आर्किटेक्चर का नाम है मेरे पास डेटा फ्लो, और उसके बाद में सेमीकोलन। तो इस तरह से ये एंड गेट के लिए आपका सिंपल प्रोग्राम बन जाएगा, राइट।
तो पहले एंटिटी लिखा है हमने, सो दिस इज योर एंटिटी पार्ट एंड दिस इज योर आर्किटेक्चर पार्ट। एंटिटी में हमने पोर्ट्स डिक्लेयर किए हुए हैं और आर्किटेक्चर में हमारे पास उसका ऑपरेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन को हमने क्या किया हुआ है, इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये एंड गेट का हो गया। अभी ध्यान दीजिए कि अगर इस एंड गेट के ही प्रोग्राम को अगर मुझे मॉडिफाई करना है और उसको अलग अलग गेट के लिए लिखना है तो चेंज कहाँ पे करना है, देखिए चेंज यू कैन डू हियर। ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स किया हुआ है एंड, इसके जगह अगर आपको और गेट के लिए अगर लिखना है, ध्यान में रखना है, और गेट के लिए अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो इस बॉक्स के जगह एंड के जगह क्या लिखना है आपको, और लिखना है। तो वहां पे ए और बी हो जाएगा, यानी ऑरिंग ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। ऑरिंग ऑपरेशन यानी y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। प्लस इंडिकेट्स, लॉजिकल एक्सप्रेशन में प्लस अगर आता है तो दैट इंडिकेट्स द ऑरिंग ऑपरेशन। तो एंड के जगह क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे। अगर नैंड गेट अगर है हमारे पास, नैंड गेट के लिए प्रोग्राम अगर लिखना है, राइट, तो रिमेनिंग पोर्शन विल रिमेन द सेम, सिर्फ एंड की जगह क्या लिखना है आपको, नैंड लिखना है, नैंड की वर्ड लिख देना है, राइट। अगर नॉर गेट अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको कीवर्ड लिखना है नॉर, राइट, एंड की जगह मैं नॉर लिख दूंगा। एक्स और गेट अगर इंप्लीमेंट कर देना है तो एक्स और की जगह आपको कीवर्ड लिख देना है आपको एक्स ओ आर, ओनली एक्स ओ आर, नॉट ई एक्स ओ आर। आपको लिखना है कीवर्ड एक्स ओ आर, दैट इज ए एक्स ओ आर बी। तो आपका एक्स और गेट इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक्स नॉर अगर चाहिए आपको, उसके लिए वीएसडीएल कोड लिखना है तो उसके लिए लिखना है आपको एक्स एन ओ आर, एक्स नॉर। यानी अगर आप सिर्फ एक ये कीवर्ड अगर चेंज कर देते हो, इट रिप्रेजेंट द लॉजिकल ऑपरेशन, और लॉजिकल ऑपरेशन के हिसाब से अगर आप कीवर्ड अगर देते हैं तो एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर, ये सारे गेट के लिए वीएसडीएल कोड आपके पास रेडी है। सिर्फ आपको चेंज कहाँ पे करना है, चेंज यू हैव टू डू हियर, राइट। और अगर लिख देता हूं तो ये प्रोग्राम बन जाएगा मेरे पास और गेट के लिए। नैंड अगर लिख देता हूं तो ये प्रोग्राम बन जाएगा नैंड गेट के लिए। नॉर लिखता हूं तो नॉर गेट का वीएसडीएल कोड बन जाएगा। एक्स ओ आर लिखता हूं तो एक्सऑर गेट का हो जाएगा, और एक्स नॉर अगर लिखता हूं तो एक्स नॉर गेट के लिए ये वीएसडीएल कोड मेरा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेंजेस करके आप अलग अलग गेट के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये प्रोग्राम किस तरह से लिखना है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। मैं इस तरह के और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन में वीडियोस बनाने वाला हूं, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो जब भी मैं नया वीडियो ऐड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकॉन रहता है उस बेल आइकॉन का बटन भी आप दबा दीजिए, सो दैट नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।